Hi guys, in today's session I'm going to share a self-study plan with you which can help you fetch higher bands. को बहुत सारे लोग हैं जिनके 5.56 और उनको एक band ज़्यादा चाहिए. So how can you prepare and get a higher band score in just 15 days? So proper technique है, but do watch this video if you're going to follow this plan. If you don't follow this plan, then this video won't help you. But if you will follow the plans, you will surely get your desired score. So I'm going to talk about 4 modules. I'm also going to talk about tips and tricks for each module. So let's get started. Guys, I'm assuming you're good with grammar, grammatical structures, vocabulary, then only you will be able to score high. Now, talking about first thing you should do before you start your IELTS preparation, if you're a beginner, please make sure you are aware about IELTS exam format. You know, you want to do academic or general. आइल्स दो तरीके की होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, पीआर अप्लाई करनी है, कौन सी आइल्स आपको करनी है. दूसरा, उसका पूरा पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इफ इट्स रीडिंग 12 क्वेश्चन टाइप्स यू शुड नो, लिसनिंग 12 क्वेश्चन टाइप्स, स्पीकिंग के 3 पार्ट से पता होने चाहिए, राइटिंग टास्क 1 टास्क 2. सो ऑल दिस यू शुड नो. ओवरव्यू आपको इसका पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी फॉर अ हायर बैंड स्कोर. नाउ गाइज, आफ्टर दिस इट्स वेरी इजी. Listening module is very easy. IELTS has 4 modules: listening, speaking, reading and writing. Starting with listening module, guys, listening आपका overall band score boost करता है. And it's really easy to get a higher band score in listening as compared to other modules. But still, so many people are overconfident and they don't prepare and they don't do listening on a daily basis. So solve 2 hours a day. Solve 2 listening tests on a daily basis from Cambridge series. You can do the audios from YouTube also. There are lots of free websites available. Apart from that, guys, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो contractions यूज करते हैं. So just learn the correct pronunciation of contractions. Now when you solve these listening papers, the task is not only to solve the papers but also to make sure you check the answers which are wrong. Let's say you've solved 40 questions, you got 30 correct, but why you got these 10 wrong? Resolve and try to understand the logic. Then also see in which questions you performed bad. Was it map, was it MCQs, and practice hard on those questions. Guys, I'll also recommend people to work hard on section 3 and section 4, which people generally mess up. Also section 1 में बहुत ज़्यादा हमें questions आते हैं related to vowel की sounds हो गया, numbers हो गया, teen, tense, so make sure you're good with it. Now in listening you can get different kinds of accents, so just make sure you're good with different kinds of accents, whether it's British, American. In 40 minutes daily you can listen to TED Talks and different kinds of audios on YouTube. मैं एक छोटा सा टिप दूंगी यहाँ पे, bonus tip from my side: prepare more on multiple choice questions, map, table completion, section 3 and section 4, because these things are the people generally find difficult. Now guys, some tips for listening: always go through the questions quickly. Listening is not an easy module. Listening में बहुत active होना है, listening भी करनी है, reading भी करनी है, writing भी करनी है. So it's very important that you first read the questions. What is the question asking? Then you also try to identify what can the answer be by reading the question. Always write your answers in capital letter, because उसमें भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है. And also guys, listen to the audio carefully. Simultaneously अपने आंसर को लिखिए, क्योंकि आंसर मिस हो गया तो बाद में आप जो है, एक आंसर मिस होता है उसके बाद लोग पूरी रिकॉर्डिंग उनकी खराब हो जाती है और फिर पूरी आगे की सीरीज खराब हो जाती है. ऑल्सो वन आंसर कांट अफेक्ट योर जर्नी. सो अगर एक आंसर नहीं समझ आ रहा है, नेक्स्ट पे जाइए. सो डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन. नाउ टॉकिंग अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल, सबको बहुत मुश्किल लगता है गाइस. मैं एक रीडिंग की स्पेशल सीरीज तैयार कर रही हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहे, एंड वंस वी हिट 25,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस सीरीज टू यू, जिसमें बहुत डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स की मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगी एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, ताकि आपको एक सही टेक्निक पता लग जाए. सो फॉर रीडिंग मॉड्यूल, फर्स्ट गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू tackle different kinds of questions. Multiple choice के लिए अलग टेक्निक है, मैचिंग हेडिंग के लिए अलग है. So that is very important. Skimming, scanning, paraphrasing, synonyms, डिस्ट्रैक्टर्स, ये सारी टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए. इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं एक पूरी सीरीज निकाल रही हूँ. आप फटाफट से थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, 25,000 सब्सक्राइबर्स करा दो, एंड देन फॉर श्योर द सीरीज इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड. डेली रीडिंग 2 घंटे करनी है. आपको बहुत बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता. स्टार्ट विद 2 पैसेजेस एंड फिर 3 पैसेज करने लगो. बहुत सारे लोगों का स्टेमिना ही नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, इसलिए पेपर में कर नहीं पाते. सो 2 आवर्स अ डे, 1 आवर के स्ट्रेच पे, पहले 1 आवर कर ली, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 1 आवर कर ली, एंड दैट टू फ्रॉम कैम्ब्रिज से ही करनी है. एंड आपको कोशिश टाइमर लगा के ही करना है कि
50 मिनट्स के अंदर करनी करनी, बिकॉज अगर एग्जाम में अभी यहाँ पर 60 मिनट्स या 1 आवर की करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे 60 मिनट्स में. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर एबल टू टेस्ट complete the test within 15 minutes. And जो डेली है ना गाइज, इफ यू जस्ट फॉलो माई दिस एडवाइस, दिस इज गोना हेल्प यू इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. यू शुड रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, क्योंकि यही डिफरेंट आर्टिकल्स ही हमें स्पीकिंग में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, राइटिंग में भी डिफरेंट होते हैं. तो ये आप आर्टिकल्स रीड करते हो तो आपको बहुत वोकैबुलरी ऑलरेडी आ जाती है और आपकी ना रीडिंग में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. यू विल स्टार्ट लाइकिंग रीडिंग मॉड्यूल. अगर आपको रीडिंग पसंद आने लगी ना, रीडिंग में कभी आपका स्कोर कम नहीं आएगा. एंड इसके लिए भी सी सम क्वेश्चन टाइप्स आर वेरी वेरी कॉमन, फ्रीक्वेंट है. एमसीक्यूज, मैच द हेडिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, समरी कंप्लीशन, व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना आते हैं. मेरी एग्जाम प्रेडिक्शंस वैसे मैं निकालती रहती हूँ, बट पहले प्रेपरेशन है फिर प्रेडिक्शन है. प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ लोगों को ओवरव्यू के अच्छा इस तरीके का एग्जाम आ सकता है उसके लिए होती है. रेस्ट ऑल इज प्रेपरेशन. नाउ फाइनल टिप्स क्या है for the reading? Please read the question first, then go to the passage, underline the keywords so you get to know this kind of information you're looking for. Also write the answers in capital letters. Fine guys, never go through the whole article. स्कैनिंग एंड स्किमिंग आपको समझनी होगी. मेन आइडिया यू शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड नो डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, कीप मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्सो वन थिंग विच आई रिकमेंड यू इज गाइज, रीडिंग जो है उसमें क्या होता है कि बहुत बारी लोग एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है. ऑल्सो पैसेज 1 से शुरू करो, फिर 2, 3 इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट होते हैं. तो आप धीरे धीरे आप ये भी देखिएगा कि वंस यू सॉल्व द रीडिंग यू ट्राई टू फाइंड आउट अगेन. जैसे लेट्स से यू हैव सॉल्व 40 क्वेश्चंस, उसमें से 10 गलत हैं, 30 सही हैं, तो वो 10 क्यों गलत हैं, रीसॉल्व. सो इफ यू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ना and resolve it the same questions, you will try to get better on reading. आपको अपनी गलतियां समझ आ जाएंगी. Now coming to नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज राइटिंग. राइटिंग टास्क 1 और 2 बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है. काफी टाइम से राइटिंग्स में भी स्कोर लोगों के बहुत कम आ रहे थे. गाइस राइटिंग के लिए फर्स्ट थिंग टास्क 1 और टास्क 2 दो टास्क हैं. टास्क 1 डिफरेंट होता है एकेडमिक जनरल का. आप दोनों चीजों को अच्छे से समझेंगे. 1 और 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे कीवर्ड्स, माइक्रो कीवर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, इसकी भी मैं सीरीज निकाल दूंगी. 25,000 सब्सक्राइबर हम हिट करेंगे जैसे ही, ठीक है. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन टाइप समझने होंगे, जैसे डिफरेंट एसेज आते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस्कशन, ओपिनियन. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट देम. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, उनकी टेक्निक ही गलत है. तो अगर टेक्निक गलत है फिर कितना भी लिख लो इंप्रूव नहीं हो सकते हो. देन इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन. यू शुड नो हाउ टू राइट देम. बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है. जैसे हम क्लासेस करते तो गेट टू नो कि आई डिडंट नो कि इस तरीके से लिखा जाता है. सो ऑफ कोर्स नहीं पता था तो फिर स्कोर कैसे आएगा. सो ये प्लानिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, फाइन अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, पैराग्राफिंग, ये सब आप समझिए पहले, सबसे पहले. देन आप क्या है कि फिर जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन कम टू द प्रैक्टिस सेक्शन. सॉल्व करने डेली 2 आवर्स राइटिंग को देने हैं. करना क्या 2 आवर्स में, टास्क डेली लिखो, 2 टास्क 1 भी टास्क 2. बट टास्क 1 यू हैव टू कंप्लीट विद इन 15 मिनट्स, फाइन. एंड टास्क 2 विद इन 35 मिनट्स, फाइन. आप 5-5 मिनट प्रूफ रीडिंग दो और थोड़ा सा टाइम प्लानिंग पे भी दो. मैं एक और चीज आपको रिकमेंड करती हूँ. बहुत सारे वर्ड्स ना हम लिखते हुए रिपीट करते रहते हैं, जिससे हमारा वोकैबुलरी का स्कोर कम हो जाता है. जैसे इट्स ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को वी कैन से इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, राइज इन अर्थ टेम्परेचर. सो वी नीड टू लर्न हाउ टू पैराफ्रेज द वर्ड्स. मैं जो कार्स, मोटर व्हीकल्स कह सकती हूँ, ऑटोमोबाइल्स कह सकती हूँ. सो आई नीड टू इंक्रीज माई वोकैबुलरी अगर मुझे स्कोर करना है हायर, क्योंकि मेरे को सिनोनिम्स यूज करने पड़ेंगे. दूसरा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करने, वैरायटी उनकी यूज करनी है. एंड अगर जैसे इफ यू अगर आपके पास कोई ट्रेनर है तो वो आपकी राइटिंग की इवैल्यूएशंस ऑफ कोर्स कर देंगे, तो वो आपको ये सारी चीजें बताएंगे भी किस तरीके से आप अलग अलग, नॉट ओनली बट ऑल्सो इफ यू कैन यूज पीपीएफ, किस तरीके से आप डिफरेंट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो ट्राई टू सी, मैं ये इफ ही बना रहा हूँ, खाली एंड ही बना रहा हूँ, देन मेरे को कौन से और बनाने हैं. वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप देखिए. वन मोर थिंग विच आई रिकमेंड माई स्टूडेंट गाइस, ये एक छोटा सा बोनस ट्रिक है. आपने जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका ना सैंपल आंसर गो ऑन गूगल एंड ट्राई टू रीड, देन सी कि उसमें क्या
डिफरेंस है उसके और आपके आंसर में, उनका क्या वे था आइडियाज को लिखने का, आपका क्या वे था। तो इससे ना आपको अच्छा भी लगेगा, प्लस आपकी ना वो इंक्रीज होगी, जैसे एक ऐसे को अटेम्प्ट करने का तरीका, वो कैब, उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखोगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग राइटिंग अगेन, और फिर आपको राइटिंग में 7+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेटेस्ट एग्जाम ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्पीकिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के, हर चीज के मेरे चैनल पे आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पीटी यूनिवर्स पे आप फॉलो करते हो तो वहां भी आपको मिल ही जाते हैं, और वेबिनार्स वगैरह भी हमारे होते रहते हैं। सो नाउ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट, you need to make sure that you solve at least 2 line graphs, 2 pie charts, 2 maps, 2 process, 1 table and 10 double graphs। ये करना ही करना है अगर आप पेपर को जल्दी देना चाहते हैं, मिनिमम है ये। एंड इफ यू डूइंग जीटी, तो जीटी के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको 3 फॉर्मल लेटर, 3 सेमी फॉर्मल और 3 इनफॉर्मल, ये तीनों टाइप्स की 3-3 लेटर्स एटलीस्ट आपने लिख लेनी है। एंड किस लेटर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी मेरी एक वीडियो भी अगर देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। इवन मैंने मैप की भी एक वीडियो डाली है, प्लीज उसे देख लेना। मैप्स में बहुत दिक्कत थी लास्ट टाइम लोगों ने बताया था। नाउ कमिंग टू टास्क 1 academic, प्लीज लर्न हाउ टू एनालाइज द डाटा, समराइज द डाटा, वोकैबुलरी क्या है अलग अलग ट्रेंड्स के लिए। तो ये जब तक नहीं आएगा ना वोकैबुलरी, तो आपको टास्क 1 में थोड़ी दिक्कत आएगी। एंड फॉर टास्क 2 एटलीस्ट 5 ओपिनियन एसेस, 5 डिस्कशन, 5 एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कम से कम आपको 5-5 लिखने ही है, ताकि आपका जो है इनको चेक भी कराओ अपने ट्रेनर से, फीडबैक भी लो, उन फीडबैक पे भी वर्क करो, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ कमिंग टू राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लीज किसी भी ऐसे को बुलेट पॉइंट में मत लिखो, डिवाइडेड इन 4 to 5 पैराग्राफ्स, यूज गुड वोकैबुलरी एंड व्हाइल कीप राइटिंग जस्ट कीप द पैराग्राफ्स कनेक्टेड। And guys, now last module speaking. This session was really very helpful. I think the people are going to follow it. Let me know in the comment section. This will definitely help you, really help you. अगर आप इसको as it is follow करेंगे, if you won't follow, of course, it won't help you. The speaking has 3 parts: part 1, part 2, part 3. Some people only prepare cue cards and the examiner get to know, because cue card बहुत अच्छा होता है, part 1 और part 3 पता ही नहीं है कि कैसे attempt करने हैं. So what you can do is practice 1 hour a day. 1 hour में कर क्या सकते हो, नई क्यू कार्ड सीखो, जनरेट करो उनके आइडियाज, प्रिपेयर करो। आई रिकमेंड माय स्टूडेंट्स 5 क्यू कार्ड्स डेली प्रिपेयर करनी है, फिर मिरर प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने। इफ यू डोंट हैव एन एग्जामिनर, इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, ट्राई टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टाइमर ऑन कर दो, रिकॉर्डर ऑन कर दो, तो उससे आपको पता लग जाएगा आप कितना कैसा बोल रहे हो। अगर आपके ट्रेनर्स है तो देन इट्स रियली वेरी गुड, वो आपके राइट स्पीकिंग को मार्क कर सकते हैं। फाइन। तो डेली अगर आप स्पीकिंग करोगे ना मिरर के सामने 15 मिनट भी करोगे, तो फ्लुएंसी आप देखना अपने आप आपको दिखेगी। एंड सिंपल टॉपिक्स पिक करो, व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट वीकेंड, व्हाट डिड यू डू ऑन लास्ट मंथ, हाउ वाज योर डे, फाइंड डेली रूटीन, होम टाउन, डेली सिंपल टॉपिक्स उठाओ। कोरोना वायरस पेंडेमिक क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ, गिव most beautiful gift you have got from somebody, like this. स्पीकिंग के नए क्यू कार्ड्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं, वो भी देख के प्रिपेयर करके जाना एग्जाम से पहले। Now guys, one more thing before we proceed further. Speaking के लिए vocabulary लोगों को बहुत टाइम पता भी होती है, दिमाग में नहीं आती, क्योंकि वो अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। बहुत सारे लोग स्पीकिंग में फ्लुएंट ही नहीं होते क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। सो मेक श्योर यू डू दिस। हम पीटी, आइल्स, नाटी, सेल्फ, ओईटी और ड्यूलिंगो की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पीटी यूनिवर्स पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, क्योंकि बहुत और अच्छे अच्छे ऐसे सेशंस आने वाले हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में भी और उसके बाद भी, क्योंकि मैं कनाडा के इमिग्रेशन अपडेट्स, स्टूडेंट वीजा, इन सब की क्वेरीज भी लेती हूँ हर संडे अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टा संडे सेशन होता है आदिति के साथ, यानी कि मेरे साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब लोग प्रिपेयर कर लेते हैं बट पीपल नेवर डू देयर मॉक टेस्ट, एंड सिंस दे डोंट डू द मॉक टेस्ट, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी क्या गलतियां हैं। कुछ बेसिक गलतियां होती है जो हम एग्जाम पे करते हैं, बट सिंस दे डोंट डू दिस मॉक टेस्ट, दे नेवर गेट टू नो। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक मॉक टेस्ट करना, कम से कम एक तो करना ही है। हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 से 3 आईएलटीएस रियलिटी मॉक टेस्ट करवाती हूँ। अगर आप हमें फॉलो करते हैं या अगर आपको मेरे में पता है, हम आईएलटीएस रियलिटी मॉक टेस्ट भी ऑफर करते हैं बहुत लो रेट पे, जो कि हर स्टूडेंट एनरोल कर सकता है और ले सकता है। आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का लेवल, एग्जाम के एग्जैक्ट सराउंडिंग में बिठा के एग्जाम कराया जाता है, वही एनवायरनमेंट, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट बना के, और आपको वही तरीके से इंटरव्यू और राइटिंग्स आपकी चेक होती हैं, फीडबैक मिलते हैं, तो गलतियां पता लगती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे करने पड़ेंगे अनइंटरप्टेड,
60 मिनट्स 30 एंड 15, ये आपको मॉक टेस्ट करके देखना पड़ेगा, और फिर स्कोर्स क्या आ रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। 2 मॉक टेस्ट जरूर करिए, एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू गाइस। आईएलटीएस की जो एग्जाम है, दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आंसर शीट पे ट्रांसफर कैसे करने, टॉपिक प्रिपरेशन। सो इफ यू विल मास्टर इट, यू विल स्कोर रियली हाई। नेक्स्ट क्या होगा कि मैं अपना जो, अगर आप हमसे आईएलटीएस पीटी नाटी सेल्फ की कोचिंग लेना चाहते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल है। So don't give random attempts. You can pass the IELTS in first attempt only. All you need is a trainer who can give you the right feedback and you can work on that feedback. तो हम अपनी क्लासेस में यही करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है, स्टूडेंट्स उन फीडबैक्स पे अच्छे से वर्क करते हैं, ट्रेनर्स उन्हें गाइड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उन पे बच्चों को फीडबैक भी मिल चुका होता है। एंड इसीलिए कारण जो है, आप देखोगे अगर मेरी इंस्टाग्राम पे जाके स्टूडेंट्स को स्कोर बहुत सारे उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।